اس لانڈی کے اس نوجوان کو بلا رہا ہوں کہ جو کبھی فلاحی سرگرمیاں ہوں یا دیگر کوئی مسائل ہوں، ہمیں لانڈی والوں کے درمیان کھڑا نظر آتا ہے کہ جو اپنے عزم سے اور اپنی ہمت سے اس علاقے کے لوگوں کی خدمت میں دن رات ایک کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ خدمتوں کا سفر کیوں نہ چلے، یہ لوگوں سے عشق و محبت کی داستانیں کیوں نہ بنے کہ وہ فرزند اس شہید کا ہے کہ جس نے اس علاقے کے اندر کونسلر بن کر بھی لوگوں کی خدمت کی، اور جب کونسلری کا زمانہ نہ رہا تو بھی راتوں کو آج بھی لانڈی والے اس بات کے گواہ کہ 3 بجے اس کا دروازہ بجایا جائے تو لقمان بیگ گھر کے باہر موجود ہوتا تھا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مرزا لقمان بیگ شہید کے فرزند اور نائب امیر جماعت اسلامی ضلع تورنگی مرزا فرحان بیگ کو کہ اسٹیج پر تشریف لائے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ لانڈی کے بسنے والوں سے مخاطب ہو، میں کہوں گا کہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو، اپنے بھائیوں سے، اپنے چچا اور تایا سے گفتگو کرے، اہلیان کراچی اور اہلیان لانڈی کے مسائل کو حافظ نعیم الرحمان کے سامنے پیش کرے۔ آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ اس نوجوان سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ مرزا فرحان بیگ فرزند مرزا لقمان بیگ شہید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھاؤ لاکھ دیواریں، طلوع مہر تو ہوگا، یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے، ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اہلیان علاقہ، لانڈی کے رہنے بسنے والوں، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر، ہماری اپیل پر، ہماری آواز پر آپ اس بڑی تعداد میں نکل کے آئے ہیں۔ یہ جلسہ آپ کی محبت کا، آپ کے اعتماد کا مظہر ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام بزرگوں کا، تمام بھائیوں کا، تمام نوجوانوں کا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب قائد کراچی جو پچھلے ایک طویل عرصے سے اس کراچی کے عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں، کراچی کے ہر مسئلے کے اوپر میدان کے اندر نکلتے ہیں، کراچی کی آواز کو بلند کرتے ہیں، کراچی کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ میں حافظ صاحب کو لانڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بہاف پر خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ لانڈی اور تورنگی یہ وہ علاقے ہیں کہ جو کراچی کے سب سے زیادہ نظر انداز شدہ علاقے ہیں۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ نکلے، آپ میدان کے اندر آئے، آپ نے مردم شماری کی بات کی، اس لانڈی تورنگی کی آبادی کو مردم شماری میں 17 لاکھ بتایا گیا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ 2015 کا انتخاب جب ہم نے لڑا تو 2015 کے اندر جو بلدیاتی حلقے بنائے گئے تھے، 40 سے 50 ہزار کی آبادی پر حلقہ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ سامنے UC 16 ہے، اس UC 16 کے اندر رجسٹرڈ ووٹ 32,000 تھے، یہ UC 18 تھا، بائیں جانب موجود ہے، یہاں 28,000 سے زیادہ ووٹ تھے۔ ارے 40,000 کی آبادی پہ حلقہ بننا تھا، جہاں 32,000 ووٹ ہوں گے وہاں آبادی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ 2015 کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج 2020 کے اندر یہ آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ 17 لاکھ آبادی لانڈی اور تورنگی کی ٹھیک آبادی نہیں، کم سے کم بھی لانڈی اور تورنگی کے اندر 25 سے 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں کہ اگر 17 لاکھ کی آبادی کو ہی اگر درست مان لیا جائے تو اس لانڈی اور تورنگی کے اندر کم از کم بلدیاتی حلقے ان کی تعداد 34 ہونی چاہیے، 34 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کل 23 یوسیاں اس لانڈی اور تورنگی کے اندر ہیں۔ پھر میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اس لانڈی کے اندر، تورنگی کے اندر، ہمارے اس علاقے میں
यकीनन वो मसाइल कि जो कोटा सिस्टम का मसला है, जो मुलाजमतों का मसला है, जो नौकरियों का मामला है, जो बल्दियाती एक्ट और आवाम के हुकूक की गजब करने का मामला है, उन सारे मसाइल के साथ साथ हमारे इस्लांडी का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। मैं आपसे ये बात अर्ज करूं कि अब अक्टूबर का महीना जा रहा है, नवंबर का महीना आएगा, दिसंबर का महीना आएगा, 2 और 3 महीने, 2.5 महीने अक्सर इलाके के जो बंजर पड़े थे, सहरा बने हुए थे, वहां पानी आने लगेगा। ये पता नहीं अचानक नवंबर और दिसंबर में, जनवरी के महीने में पानी कैसे बढ़ जाता है, ये जून और मई के अंदर कम क्यों हो जाता है। 2.5 से 3 माह लांडी के अक्सर इलाकों को पानी मिलता है, बाकी 2, 9 और 10 महीने ये सिलसिला बंद रहता है। वजह क्या है? वजह ये है कि गर्मियों के अंदर टैंकर की भरमार होती है, नोट कमाने का मौका होता है, पैसे बटोरने का मिलता होता है, लांडी के लोगों को पानी से महरूम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लांडी के पानी के मसले के ऊपर खड़े रहे हैं, मैदान के अंदर रहे हैं, हमने धरने दिए हैं, हमने आवाम की आवाज को बुलंद किया है और इंशाअल्लाह इस तहरीक के आगे बढ़ने के नतीजे में मैं ये बात आपके सामने अर्ज करूं, लाठी वालों के सामने अर्ज करूं, आज भी मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि इस हल्का 85 के अंदर, इस लाठी के अंदर पानी का मसला था। 1983 में जब लुकमान बेग काउंसलर मुंतखब हुए, वो पानी लेके आए, पहले गली के कोनों पे नलके लगे, उसके बाद घर घर पानी पहुंचाया गया, लाइनें डाली गई। आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, वो मसला जो 85 और 84 में लुकमान बेग ने हल कर दिया था, आज 2020 में हम तालीम की बात नहीं कर रहे, कॉलेजों की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्सिटियों की बात नहीं कर रहे, उसी पानी के पीछे हम रो रहे हैं। लेकिन मैं लाठी वालों से बात कहना चाहता हूँ, आप हाफिज नईमुर रहमान के हाथ मजबूत करें, आप अब्दुल जमील खान के हाथ मजबूत करें। इंशाअल्लाह माजी में भी लांडी को लुकमान बेग ने पानी दिया था, दोबारा इस लांडी के अंदर हम पानी लेके आएंगे, जमात इस्लामी पानी लेके आएगी, अब्दुल सत्तार अब्बानी, नेमतुल्लाह खान के जानशीन पानी लेके आएंगे। फिर इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक इस लांडी का बहुत सुलगता हुआ इशू है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, हम आपको सलाम पेश करते हैं। कोई दूसरी जमात, कोई दूसरा गिरोह, कोई सोशल एक्टिविस्ट इसके इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करने के लिए जब तैयार नहीं था, आप मैदान के अंदर आए, आपने आवाम की आवाज को बुलंद किया। इस लांडी के अंदर के इलेक्ट्रिक उसके मजालिम आलम यह है कि 2.5 घंटे की लोड शेडिंग 3 बार होती है, जो एलानिया लोड शेडिंग है। फिर उसके साथ रात को 2 घंटे बिजली बंद कर दी जाए, तो रात के 3 बजे बंद कर दी जाए, कोई टाइम मौजूद नहीं। दूसरी जानिब बिल बराबर आते हैं। हम आपको ये बात कहना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये तहरीक जमात इस्लामी ने बुलंद की है, जमात इस्लामी इस मसले को हल करेगी। और हमारा ये मुतालबा है, लाठी वालों का भी ये मुतालबा है कि इलेक्ट्रिक को वापस कौमी तहवील में लिया जाए। मैं आपसे बात अर्ज करूं कि जब हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो उससे मुराद के इलेक्ट्रिक के वो सारे गासिब, वो चोर, वो इंटरनेशनल डाकू होते हैं, वरना के इलेक्ट्रिक के आम मुलाजमीन उनका मामला ये है कि वो बेचारे वो भी हमारे पास आकर रोते हैं, हमसे ये बात कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट की तलवार लटकी हुई है, हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, हमें बुलाकर 1 मिनट के नोटिस पर फारिग कर दिया जाता है। इसलिए हम लांडी के लोग, कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के जालिम के खिलाफ उसके मुलाजमीन के हक की जिद्दोजहद भी कर रहे हैं, उनके मसाइल के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। फिर इसके साथ मैं आपसे बात अर्ज करूं, गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर एक और मसला जो हमारे इस इलाके के अंदर आया, वो ये कि लुकमान बेग शहीद जब यहाँ से काउंसलर थे, उन्होंने जहाँ बहुत सारे तरक्याती काम किए, 3 से 4 स्कूल कायम किए, हर मस्जिद के साथ पार्क बनाया, पानी लेके आए, शादी हाल कायम किया। पूरे कराची में और शायद पूरे मुल्क में कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी। लेकिन लुकमान बेग ने
बल्दिया शादी हाल अवाम की बंदे बनाया। इसके साथ साथ 37 बाबर मार्केट के ऊपर एक छोटा प्लाट मौजूद था। उस प्लाट के ऊपर बैडमिंटन कोर्ट उन्होंने कायम किया था। अब से कुछ दिन पहले उस बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई। अहले इलाका वो यहाँ भी मौजूद हैं। हमने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि लुकमान बेग शहीद थे इलाके के नौजवानों के लिए जो बैडमिंटन कोर्ट बाबर मार्केट 37 के अंदर कायम किया था, इंशाअल्लाह उसके ऊपर कब्जे के खिलाफ भी हम मैदान के अंदर हैं और इंशाअल्लाह कोई नाजायज कब्जा हम नहीं होने देंगे। और इस इज्तिमा के तवज्जुह से हम ये बात हुक्काम से भी कहते हैं कि होश के नाखुन लो, ये लांडी की जमीन है, ये लांडी के लोगों की जमीन, ये लांडी के आवाम का है, ये लांडी के लोगों का है। हम किसी नाजायज कब्जे को इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैं इसके साथ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ। लोग बाज़ औक़ात सवाल करते हैं, लोग कहते हैं आपके इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रहे थे, आप पानी के हवाले से बात कर रहे थे, आप मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, अब आपने कराची हुकूक तहरीक का आगाज कर दिया। माजी के अंदर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जमात इस्लामी हर दौर के अंदर कराची के हुकूक की जिद्दोजहद करती रही। लुकमान बेग शहीद जिस बल्दिया के कौंसलर थे वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाई थी, उसे बरतरफ कर दिया गया था। और अगर हमारे बुजुर्गों को याद हो तो क्यों बरतरफ कर दिया गया था? इसलिए बरतरफ कर दिया गया था कि मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी अपने कौंसलरों के साथ इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि ये जो कराची की सड़कें हैं इसके ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं वो मोटर व्हीकल टैक्स कराची को मिलना चाहिए, कराची की बल्दिया को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? कि जब सड़कें बल्दिया बनाती है तो इसके ऊपर जो गाड़ियां चलती हैं उसका टैक्स भी कराची को मिले। हम सड़कें बनाते हैं तो टैक्स भी हमें मिले ताकि हम इन सड़कों को मजीद आगे बढ़ाएं। कोई हुकूक की जिद्दोजहद के अंदर वो कतीमुशान मार्च निकला था, धरना दिया गया था और जिसके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, वक्त का मेयर उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया था। मैं ये बात कहता हूँ, फख्र के साथ कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बाप की औलाद हैं कि जिसने इस कराची के हुकूक के लिए अब्दुल सत्तार अफगानी के साथ जेल की सौबतें बर्दाश्त की थी, जेल के अंदर गए थे, इस कराची के मुकदमे को लड़ते हुए गए थे, इस लांडी और कोरंगी के मुकदमे को लड़ते हुए गए थे। इसलिए मेरे भाइयों, जमात इस्लामी हर दौर के अंदर कराची के तमाम हुकूक के लिए मैदान के अंदर रही, आवाज को बुलंद किया, जिद्दोजहद की। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने नफरत के साथ, हमने ताक़ुब के साथ, हमने गोली और गाली के साथ इस जिद्दोजहद को नहीं किया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अपने लांडी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, पिछले 30-40 साल का तजुर्बा आपके सामने है। वो वडेरे कि जो मुस्तकिल सिंध हुकूमत के अंदर होते हैं उनका कराची से कोई लेना देना नहीं, कराची से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और वो लोग जो यहाँ से मुंतखब होते रहे वो इन्हीं के साथ हुकूमतों में बैठते रहे, माजी में भी बैठते रहे, आज भी बैठे हुए हैं। आज भी 30-40 साल का सफर तय करने के बाद अंदरूने से लोगों को सिंधी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। कराची और हैदराबाद के अंदर शहरी आबादियों के अंदर महाजर के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। अब ये मजीद बेवकूफ बनने का अमल हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, कराची वाले तैयार नहीं हैं, लाठी वाले तैयार नहीं हैं। आपको मैदान में आना होगा, दोस्त क़यादत को पहचानना होगा। वो लोग कि जिनको फाइलें दिखाकर, जिनको मुकदमात दिखाकर, जिनको उनकी 2 नंबरियां बेईमानियां दिखाकर, जिनको चाइना कटिंग दिखाकर खामोश किया जा सकता हो, इस पार्टी से निकालकर उस पार्टी में शामिल किया जा सकता हो, उस पार्टी से उठाकर इस पार्टी में लाया जा सकता हो, ये सारे लोग ये कराची के दुखों का मदावा नहीं कर सकते, लाठी के मसाइल हल नहीं कर सकते। हल कोई कर सकता है, हाफिज रहमान कर सकता है, नेमतुल्लाह खान, अब्दुल सत्तार अफगानी, उसके जानशीन लुकमान बेग की जानशीन अब्दुल जमील खान कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जिनके पास सलाहियत भी हो, जो ईमानदार भी हो, जिनके ऊपर 1 रुपए करप्शन और बेईमानी का कोई चार्ज ना हो, जिनके ऊपर
ایک انچ زمین پہ قبضے کی کوئی بات نہ ہو، ایسے لوگ کراچی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لانڈی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کورنگی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ نے نکلنا ہے، آپ ساتھ آئیے، ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے، حافظ نعیم الرحمان کے ہاتھ مضبوط کیجئے۔ انشاءاللہ کوئی وڈیرا، کوئی ظالم، کوئی غاصب اس لانڈی کے، اس کراچی کے حقوق کو غصب نہیں کر سکے گا، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور وہ سارے لوگ، لانڈی کے سارے لوگ، کراچی کے سارے لوگ ماضی میں کسی جماعت کے ساتھ چلتے ہوں، کسی پارٹی کے اندر ہوں، کسی مسلک و فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جماعت اسلامی ہر زبان بولنے والوں کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہر مسلک کے لوگوں کی جماعت ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، سارے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ ماضی میں کسی کے ساتھ تھے، کسی کا جھنڈا اٹھائے تھے، کوئی نعرہ بلند رکھتے تھے، آپ آئیے لقمان بیگ شہید کے جانشینوں کے ساتھ، عبدالستار افغانی کے جانشینوں کے ساتھ، نعمت اللہ خان ڈوکے کے جانشینوں کے ساتھ، حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ قدم سے قدم ملائیے۔ انشاءاللہ حقوق کی جد و جہد آگے بڑھے گی، مسائل کو حل کرائیں گے، اس کراچی کا حق لے کر رہیں گے۔ جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو، قدم ہمارے رک نہیں سکتے، جاؤ جاؤ سب سے کہہ دو، اپنے سر جھک نہیں سکتے، رستہ تھوڑا ہی باقی ہے، سامنے دیکھو وہ منزل ہے، ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے، جیت ہمارا مستقبل ہے۔